Hello viewers, today I shall not discuss any technical matter. Rather, we shall have a general discussion on how to cope up with pressure and imposter syndrome. I have been in teaching profession for last almost 4 decades. But the changes which I have seen in last 10 years are remarkable. The education system in India has seen rapid changes in these years. Blackboard teaching has been taken over by PowerPoint slides. Use of teaching aids has increased manifold, and there is a flood of online classes or online videos. The integration of technology into education has not only changed the way lessons are delivered, but also how students learn and interact with this information. This has resulted in a very low interaction between the students and the teacher. As a result, students now feel more pressure. They get very easily or very often anxious, or can say anxiety develops very often. They feel loneliness, they lose self-confidence and becomes prey of this imposter syndrome. ये इम्पोस्टर सिंड्रोम एक विचार का पैटर्न है जिसमें आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि आपकी सफलता आपकी मेहनत के कारण नहीं, बल्कि आपके भाग्य के कारण या बाई चांस आपको मिली है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, they are all result of this imposter syndrome, and what I observe that they are on rise nowadays among students. क्वेश्चन ये है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे होती है और उसे कैसे निपटा जाए। This situation develops when we start thinking about a problem for a long time, longer than what it deserves. When we start believing that I cannot do it, when we start comparing ourselves with others which are not comparable and develop a kind of inferiority. और यहाँ पे ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम सडनली डेवलप होता है। कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है। बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चे का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, आइदर विद हिज क्लासमेट, हर क्लासमेट और नेबर। यहाँ से बच्चे में एक थोड़ी सी धीरे धीरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू होता है और ये आगे चल के बढ़ता रहता है, और इसी के कारण धीरे धीरे ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का पैटर्न ले लेती है। तो आज हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन से उभरा जाए, बाहर निकला जाए, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ सिंड्रोम। I will discuss 4 points. The first point is power of positive thinking. One of the most powerful tools you have is your mind. The way you think can shape your goal. The power of positive thinking is enormous. Positive thinking does not mean that you deny the challenge. Challenge है. It is all about taking challenge with constructive and optimistic mind. Positive thinking means making the most of potential obstacles, trying to see the best in other people, and viewing yourself and your abilities in a positive light. People who maintain a more positive outlook on life cope better with stress and anxiety. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप अपनी कार में जा रहे हैं और सडनली आप एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए आप बैठे हुए अपनी कार में घुमनाते रहिए, अपना ब्लड प्रेशर हाई करते रहिए, सिस्टम को गाली देते रहिए। ये है एक नेगेटिव या एक आम सोच। लेकिन अगर आप इसी को ये सोचें, instead of stressing about a traffic jam, appreciate the fact that you can afford a car and get to spend few more minutes
listening to music and the news, which generally you do not get time at your home or in the office. Accept that you cannot do anything about this traffic jam, this traffic problem. So why to unnecessarily put pressure on yourself? A University of Kansas study found that smiling, even fake smiling, reduce heart rate and blood pressure during stressful situations. So जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, कोशिश करिए स्माइल करने की, और लेट दैट स्माइल बी फेक स्माइल, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करिए स्माइल करने की। कुछ पुरानी बातें याद करिए अपने बचपन की जिससे आपको स्माइल आए। कुछ ऐसे फनी से वीडियो देखिए जिससे आपके चेहरे पर हंसी आए। उससे आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इट विल हैव वंडरफुल इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। नोटिस योर थॉट्स। अपने थॉट्स को जरा ध्यान से देखिए। स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर थॉट्स ईच डे। और जब आप अपने थॉट्स को देखें और आपको लगता है कि आपके थॉट्स अधिकतर टाइम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अपने थॉट्स को रीफ्रेम करिए, अपने आप से बात करना शुरू करिए। और जब अपने आप से बात करते हैं तो उस बात को भी थोड़ा नोटिस करिए कि आप क्या हर समय अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं। अगर नेगेटिव बात करते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव बनने की कोशिश कीजिए। Studies have shown that shifting to more positive self-talk can have a positive impact on your emotions and how you respond to stress. Never think of giving up. That is number 2. कभी भी हार मत मानिए। Life is not smooth. It is full of ups and downs. और जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है। Face all these situations with all your might and willpower. Acknowledge the difficulties. आप मान के चलिए कि डिफिकल्टीज हैं, लेकिन साथ साथ अपने आप से यह भी कहते रहिए कि दिस टाइम विल ऑल्सो पास। ये टाइम भी निकल जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है, इसलिए डिफिकल्ट टाइम की भी एक्सपायरी डेट होगी। बुरा समय कष्टकारी हो सकता है, लेकिन हर चीज की तरह उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। और ये हमारा काम है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि इस समय जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, हम इससे पार पा लेंगे। रिमेंबर, स्टार्स शाइन ओनली इन डार्कनेस। यू विल ऑल्सो डू योर बेस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। यू माइट हैव प्लेड ऑन द स्विंग। आपने झूला होगा कभी। जब आप झूले में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके पेट में एक अजीब सी बटरफ्लाई सी उछलती हैं। वो इस बात का संकेत है कि आगे आप ऊपर जाने वाले हैं। इट फील्स अनईजी गोइंग डाउन एट टाइम्स, बट हियर इज अ पर्सपेक्टिव। जस्ट लाइक द स्विंग टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल राइज अगेन। एक स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं होता जो क्राई नहीं करता। ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इज नॉट द वन हु डज नॉट क्राई। ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इज वन हु क्राइज, शेड टीयर्स फॉर ए मोमेंट एंड देन अगेन गेट्स अप टू फाइट। बॉक्सिंग को देखिए आप। बॉक्सिंग में कितने पंच लगते हैं और हर पंच के बाद जो खिलाड़ी होता है वो गिर जाता है, पर उसको हार नहीं मानते। रेफरी उसको टाइम देता है उठने के लिए। बॉक्सर की हार तब डिक्लेयर की जाती है जब वो उठने से मना कर देता है। तो फेल्योर आपकी इनएबिलिटी का परिचायक नहीं है, लेकिन फेल्योर से हार मान लेना ही आपकी असली हार है। सो नेवर गिव अप, नेवर बी डिमोरलाइज्ड विद ऑब्स्टिकल्स, नेवर केयर फॉर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। जस्ट से टू योरसेल्फ यू कैन डू इट, and believe me, you will do it. Remember the quote of Thomas Edison, who invented the bulb? Edison failed 10,000 times before he succeeded. And जब किसी आदमी ने उससे पूछा कि आप 10,000 बार आपका अटेम्प्ट फेल हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे,
तो उसका जवाब क्या था आपको पता होगा। उसने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। दीज आर दी 10,000 ways that won't work। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करिए। सेकंड है बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी मत सोचिए यू कैन नॉट डू इट। ऑलवेज से आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये कई बार हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा और वो धीरे धीरे ऐसा आपके मन में घर कर जाता है, ऐसा आपके मन में बैठ जाता है कि आप फिर उस काम करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप कभी जू में गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि हर जानवर को एक पिंजरे के अंदर बंद रखते हैं। शेर हो, चीता हो, इवन भालू है, सबका पिंजरा बना होता है, लेकिन हाथी का पिंजरा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई पिंजरा नहीं है जिसे हाथी तोड़ ना सकता हो। तो हाथी को कैसे रखते हैं जू में, आपने देखा है कभी? उसके पांव में एक रस्सी बांध कर रखते हैं। तो एक आदमी जब जू में गया तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ये एक इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, ये कोशिश क्यों नहीं करता इसको तोड़ने की। तो वो बंदा उस ट्रेनर से पूछता है कि ये रस्सी या चेन जो भी आप कहें, इसको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता है। तो ट्रेनर कहता है कि जब ये छोटा बच्चा था तब हम उसको एक रस्सी से बांध के रखते थे और उस समय वो रस्सी काफी मजबूत थी, उसके लिए उसकी हिम्मत को देखते हुए वो रस्सी काफी मजबूत थी। धीरे धीरे इसके बच्चे के मन में ये बात बैठ गई कि ये रस्सी टूट नहीं सकती, इससे ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी बड़ा होता गया लेकिन वो बात उसके मन से निकल नहीं पाई। सो द ओनली रीजन दैट द एलिफेंट was not able to break free and escape from the camp was that over the time the elephant adopted the belief that it is just not possible for him to break this rope or to break this chain. So because the elephant believed strongly that he cannot break the chain, he did not try. This belief was holding him back. No matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. Believing that you can become successful is the most important step to achieve that success. क्योंकि जब आप सोचना छोड़ देते हैं तो आप हिम्मत भी हार जाते हैं। As long as you have a wish, you have the reason to live. Complete satisfaction is complete death. तो सोचना कभी मत छोड़िए और अपने आप को विचारों में मत बांध के रखिए, अपनी एबिलिटी को समझिए। तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नो पेन नो गेन। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, strength comes through struggles. Your struggles develop your strength. When you go through hardship and decide not to surrender, that is the strength. Example मैं आपको देता हूं। Did you ever see how a cocoon reaches the stage of butterfly? बटरफ्लाई कैसे बनती है कोकून से? एक आदमी ने एक कोकून को देखा और वो उसको रोज ऑब्जर्व करता था। तो एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में बहुत पतला सा एक ओपनिंग क्रिएट हो गई है। उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, वो वहीं बैठ के उसको देखने लगा। नाउ उस ओपनिंग से एक बटरफ्लाई निकलने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, बड़ा स्ट्रगल करती है, क्योंकि वो जो ओपनिंग थी बहुत छोटी है। तो वो बहुत कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है निकलने की, और सडनली इट स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस। यहां उस आदमी ने, बीइंग ए वेरी काइंड हार्टेड मैन, थॉट दैट लेट मी जस्ट हेल्प दिस बटरफ्लाई टू कम आउट ऑफ दिस कोकून। तो उसने क्या किया, ही टुक ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून। उस कोकून का जो हिस्सा था वो काट दिया। अब बटरफ्लाई तुरंत बाहर निकल आ गई, लेकिन बटरफ्लाई का पूरा शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख बहुत छोटे छोटे थे, बिल्कुल ड्राई
और वो आदमी इसको बैठे देख रहा था कि धीरे धीरे इसके पंख बड़े हो जाएंगे, ये उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस कोकून से बटरफ्लाई का निकलने का जो स्ट्रगल है, दैट वाज द गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इनटू इट्स विंग्स। और वो नहीं हो पाया, तो उसके विंग्स कमजोर रह गए, और वो बटरफ्लाई पूरी जिंदगी ऐसी क्रॉलिंग करते करते अपनी सूजी हुई बॉडी को लेके, स्वेलन बॉडी एंड विद वेरी स्मॉल विंग्स, ऐसी पूरी जिंदगी बिताते रहे। Our struggle in life develop our strength. Without struggle, we never grow and never get stronger. So it is very important for us to tackle challenges on our own and not be relying on help from others. Friends, sometimes you are not satisfied with your life, but remember that many people in the world are dreaming of living your life. एक बच्चा खेत में खड़ा है और उसके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता है, उसका सपना होता है मैं कब हवाई जहाज में बैठूंगा, लेकिन उसी हवाई जहाज का पायलट जब नीचे देखता है ग्राउंड की तरफ, उसका सपना होता है कब मैं नीचे उतरूंगा और अपने घर जाऊंगा। यही लाइफ है। तो इस लाइफ को लीजिए एज ए चैलेंज, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो भी सुझाव होगा आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।